آج ہم لوگوں نے ایک مشورہ کیا کہ ہمارے مفاد کے لیے ڈسٹرکٹ بولان یا تحصیل بھاگ یا ان علاقوں کے لیے کون سا ہمارے لیے مفاد ہے. تو میں یہی سمجھا کہ ہم لوگوں نے یہاں پر دو ٹیمیں ہیں، ایک گیلو کرد کی طرح، دوسرا سردار یارمند کی طرح. آج ہم لوگوں کے کونسلروں نے اجلاس اور میٹنگ کر کے اپنا فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے مفاد اور مفادات علاقے کے ترقی اور کام کے اس بنا پر ہم لوگ گیلو کرد کے ساتھ اتحاد میں شامل ہو کر ہم لوگ اس کے ساتھ شانہ بشانہ اکٹھے رہیں گے. اور آج اللہ کا شکر ہے، یہ ہمارے بولان کے لیے خوش قسمتی ہے، جتنے ہماری سیاسی قوتیں ہیں وہ ایک جا ہوئے ہیں اور عوام کے مفاد کے لیے. میں سارے جتنے بھی ہمارے باغ کے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کونسلر صاحبان ہیں، میں ان کا ایک دفعہ پھر دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. صافی حضرات، آج آپ لوگوں کو زحمت دی. ہمارے وڈیرہ بشیر احمد چلگری صاحب جو نیشنل پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، اور ہمارے حاجی ہاشم صاحب، میر شہید الخان مغوری صاحب ہمارے پارٹی کے سرگردہ رہنما ہیں، میر چنگیز چلگری صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے باغ کے گرانی صاحب، ہمارے دوسرے چلگری صاحب، جتنے بھی ساتھی ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہمارے اتحاد میں شامل ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے بھی جو ہماری سیاسی بصیرت رہی ہے، ہم سارے ساتھیوں کو اکٹھے لے کر چلتے تھے. اور آج اللہ کا شکر ہے، یہ ہمارے بولان کے لیے خوش قسمتی ہے، جتنے ہماری سیاسی قوتیں ہیں وہ ایک جا ہوئے ہیں اور عوام کے مفاد کے لیے. میں سارے جتنے بھی ہمارے باغ کے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کونسلر صاحبان ہیں، میں ان کا ایک دفعہ پھر دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں بابو شہید مغوری صاحب کا، ڈیرہ بشیر احمد مغوری چلگری صاحب کا، گرانی صاحب کا، حاجی ہاشم شاوانی اور ہمارے چنگیز خان جو ہمارے محترم میر ستار گورامزئی صاحب کا، اور ہمارے جو شہید کے ایسے ڈاکٹر ربیع رہی کے فرزند میر چنگیز چلگری صاحب کا، اور سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آ کر جو ہم نے ایک اتحاد بنایا ہے اس اتحاد میں شامل ہوئے. اور اس کے بعد جیسے حاجی صاحب نے فرمایا، ہماری یہ اتحاد یہاں پر ختم نہیں ہوگا، یہ آگے جنرل الیکشن میں پر ہی جائے گا. اور انشاءاللہ اس قوتوں کو آج کے بعد ان کو یہ میرے خیال اچھی طرح معلوم ہوگا کہ ابھی ہم اس طریقے سے جو پہلے ڈسٹرکٹ میں اور صوبے میں جو کام کرتے اس طریقے سے نہیں چلے گا. لوگوں پر ان کا ظلم ستم نہیں چلے گا، لوگوں کو آپ پانیوں کو بند نہیں کر سکتے، لوگوں کو واؤں کو آپ بند نہیں کر سکتے، لوگوں کا استقصال نہیں کر سکتے. جو 35 سال میں آپ نے کیا ہے وہ بہت کافی ہو چکا. یہ بولا کہ غیرت مند غیور عوام ابھی جس غیرت کے ساتھ، قوت کے ساتھ یہ سپاہ شیشہ دیوار کی طرح کریں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ یہ ساروں کو یکجا دیکھیں گے. اور انشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا یہ ہماری پینل کی کامیابی ہے، یہ غریب عوام کی کامیابی ہے، یہ مظلوم عوام کی کامیابی ہے، یہ بولان کے عوام کی کامیابی ہے، یہ بلوچستان کے عوام کی کامیابی ہے. اس سے آپ دیکھیں گے سارے ڈسٹرکٹوں میں ایسا ہی انقلاب آئے گا، اور لوگ جو مینوپولیٹڈ لوگ ہیں، جو آرٹیفیشل ہیں، ان کو انشاءاللہ رد کریں گے. ابھی بھی انہوں نے کھولپور سے لے کے باغ تک
रद्द कर दिया और आइंदा भी इंशाल्लाह के ऐसी रद्द करेंगे। इसके असरात हमारे जो नेबर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी पड़ेंगे और वहाँ भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। हम आपके साथ हैं वडेरा। पहले भी हमने जो हमारी कारदगी है हाजी साहब आपने देखा है और इंशाल्लाह अभी तो आप लोगों को मुबारक हो कि बाग हमारे साथ है। हम बाग को लेकर चलेंगे, उसे एक ऐसा लिटिल टाउन बनाएंगे, उसको ऐसे खूबसूरत बनाएंगे। लोग इस दौर पर बाग को देखने के लिए बाहर से आएंगे इंशाल्लाह। हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हम बाग के अवाम को पहले बेचारे कोलू काहान रखड़ी नेशनल असेंबली डेरा बुगटी में अब कॉमन सेंस की बात है। इस इलाके को बलूचिस्तान के पंजाब के साथ मिला हुआ है। सूबाई में वैसे भी अभी सूबाई में गले में लगा है और नेशनल असेंबली में भी ये हमारे साथ होंगे। हम इनके शान बशाना होंगे और ये हमारे शान बशा होंगे इंशाल्लाह। आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। आपके मसाइल आपके घरों के दहलीज पर इंशाल्लाह हल होंगे। सदर हूँ और आज जो हमारे बीडी के इलेक्शन हुए हैं, इस बीडी के इलेक्शन के तहत जो हमारे काउंसलरान, चेयरमैन, तहसील भाग, डिस्ट्रिक्ट बोलान के मुतहद इत्तेहादी और हमारे नेशनल पार्टी के दोस्त और इलाके के मोतबरीन और सरदार जो भी हमारे इत्तेहाद में मौजूद हैं, आज हम लोगों ने एक मशवरा किया कि हमारे मुफाद के लिए डिस्ट्रिक्ट बोलान या तहसील भाग या इन इलाकों के लिए कौन सा हमारे लिए मुफाद है। तो मैं यही समझा कि हम लोगों ने यहाँ पर दो टीमें हैं, एक गेलू कुर्द की तरह, दूसरा सरदार यारवंद की तरह। आज हम लोगों के काउंसलरों ने इजलास और मीटिंग करके अपना फ़ैसला किया है कि हम लोगों के मुफाद और मुफादात इलाके के तरक्की और काम के उस बिना पर हम लोग गेलू कुर्द के साथ इत्तेहाद में शामिल होकर हम लोग उसके साथ शाना बशाना इकट्ठे रहेंगे। और आज जो हमारे तमाम ये पीछे काउंसलर लोगान बैठे हुए हैं भाग से और डिस्ट्रिक्ट बोलान से हमारे साथ आए हुए हैं, आज यहाँ पर इन्होंने तमाम अपने ऐलानात किया कि हम लोग इस पैनल में साथ इत्तेहाद के साथ काम करेंगे। और हमारे नेशनल पार्टी और हमारे दूसरे दोस्तों ने गेला कुर्द के इत्तेहाद जो कि इलेक्शन इत्तेहाद है वो इसको कामयाब बनाने के लिए भरपूर हिमायत और कोशिश करेंगे। मेहरबानी। बाद आए हुए तमाम दोस्त और हमारे मीडिया वाले, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने अपने कीमती वक्त से कुछ वक्त निकाल कर हमें वक्त दिया। मेरा नाम हाजी मोहम्मद हाशिम शावानी है और मेरा ताल्लुक जमीयतुल उलमा इस्लाम ज़िला कच्ची से है। आज से पहले कुछ दिन पहले जो इलेक्शन हुए थे, इस इलेक्शन के दौरान मैं और मेरे साथियों ने अपने जमात की तरफ से इंतखाबी निशान जो कि हमारा किताब है उस हवाले से इलेक्शन लड़ा और हमारे काफ़ी साथी हमारे ज़िला कच्ची में कामयाब हुए। लेकिन हालात की नज़ाकत को भांपते हुए गुज़िश्ता 30-32 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। चूँकि ज़िला कच्ची बलूचिस्तान के उन तमाम ज़िलों में से एक वो ज़िला है कि जहाँ पर आबादी के लिए सिर्फ अल्लाह की रहमत के हमेशा हमारी निगाहें उस तरफ होती हैं। जब बारिश होता है तो वो बारिश का पानी सैलाब की तरह आकर हमारे इलाके को आबाद करता है। लेकिन उसके अलावा भी जैसे कि पिछले साल 9 महीने से हमारे इलाके में पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे थे, लेकिन हमारे नुमाइंदों ने पिछले जितने अरसे में जो भी यहाँ पर कामयाब हुआ उन्होंने आज तक, जबकि इस वक्त पिछले कुछ अरसे से सुनीद में आया कि 3.5 अरब रुपए बोलान डैम के हवाले से आया हुआ था, लेकिन आज तक पता नहीं कि वो पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ और किसको दिया गया। जो बातें आती हैं उसके अलावा हमारे MPA साहिबान या MNA साहिबान, चूँकि इनका ताल्लुक बड़े घरानों से है, हम लोग सारे मजलूम लोग हैं, बालानाड़ी चाहे हो या ज़िले बोलान का कोई भी ऐसा इलाका,
हम हमेशा इन लोगों को अपना नुमाइंदा चुनते थे कि याद इनको अल्लाह ताला ने पहले से वसाइल दिए हुए हैं, शायद वो आए हुए रकूम में से हम लोगों पर ये रकम खर्च करेंगे। लेकिन हमारी या बदकिस्मती या उन लोगों की खुशकिस्मती कि जितना रकम आता है पेट उनका रबड़ की तरह है, जितना डालते हैं वो फैलता जाता है, लेकिन हमारे लिए वो पैसा नहीं बचता था। आज हम लोगों ने ये सारे लोग कच्ची का जितना भी इलाका है, कच्ची इत्तेहाद के हवाले से एक इत्तेहाद बनाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर दो ताकतें इस वक्त है तो काफी ताकतें, 3-4 ताकतें, मगसी के हवाले से, अपना रिंद साहब के हवाले से, गेलू के हवाले से। लेकिन हम लोगों ने जब देखा कि सबको हम लोगों ने अच्छी तरह देखा और सबके साथ ताउन किया, लेकिन ताउन के बाद हमारे और हमारे दोस्तों के साथ, हमारे गरीब लोगों के साथ वो ताउन हुआ जो आज हम लोग अपने घरों में बैठने तक भी मोहताज हैं, पानी की बूंद के लिए तरसते। मैं यकीन से आपको कहता हूं कि 10 मील से भी लोग आकर रेड़ों पर, गड्ढों पर या किसी भी चीज पर पानी पीने के लिए लाते हैं। बोलान का वो इलाका जिसको बाग कहते हैं, कच्ची का वो इलाका जिसको तहसील बाग कहा जाता है, इसके लिए अयूबी दौर से लेकर इस वक्त तक करोड़ों रुपए पानी वाटर सप्लाई के लिए खर्च हुए, जिसमें सन्नी में इस वक्त 12 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, एक कतरा पानी नहीं मिलता इनको। उसके बाद डेरा मुराद से पानी का एक सबील बनाया गया 18 इंची पाइप है, लेकिन वो भी नाकाम हुआ। अभी पिछले 2 साल में पता नहीं कितने करोड़ रुपए शोरान के हवाले से मंजूर हुए, वहां भी पर भी ट्यूबवेल लगे, लेकिन बाग वालों को आज तक पीने का पानी नहीं मिला। हम समझते हैं कि ये 3 रकम खर्च हुआ है वो लोगों के लिए के लिए नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग बल्कि उन लोगों के लिए जिनके पेट इतने रबड़ के भरे हुए उनके लिए है। हम चाहते हैं कि ये पैसा उन लोगों से निकलवाया जाए जो इसकी मात। पिछले कल के दिन भी आप लोगों ने देखा था कि पूरा कच्ची का इलाका आया हुआ था, जिन्होंने बाज दोस्तों ने जो कि आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने बाप पार्टी में आसिम खुर्द गेलू की क़यादत में शमूलियत अख्तियार कर ली। क्योंकि हमारा ताल्लुक जमीयत से है, हमारे वडेरे साहब का ताल्लुक नेशनल पार्टी से है। इस वक्त हम 3 ताकतें, एक वो अवामी ताकत जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े कर आए हैं, वो गेलू पार्टी में शामिल हो, गेलू इत्तेहाद में शामिल हो गए, और हम जो है अपने हैसियत से जो कामयाबी जमाते हैं, हम भी इसी एक ही कच्ची इत्तेहाद के हवाले जो इत्तेहाद बन गया है इस इत्तेहाद में शामिल है। और उस वक्त ये शामिल सिर्फ हमारा ये जिले कच्ची के इस इलेक्शन के लिए नहीं, बल्कि आने वाले हर इलेक्शन में इंशाल्लाह ये मुशावरत के साथ रहेंगे और यही इत्तेहाद हमारा रहेगा। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा बंदा वो सर नहीं उठा सकेगा, अगर हम लोग जिंदा हुए तो वो कभी किसी का एक पैसा भी नाजायज तरीके से न कोई लेगा, न कोई खर्च करेगा, न कोई कहा सकेगा। इसके लिए टीम मुकर्रर करेंगे इंशाल्लाह ताला। पिछले और साहब का जो भी हिसाबात होंगे इनसे हम गले में लेकर इनसे वसूल करेंगे। अगर ये इत्तेहाद बरकरार रहा और ये इत्तेहाद इसी हवाले से हम आसिम खुर्द गेलू से भी अपील करते इस इत्तेहाद को मजीद मजबूत करने के लिए, अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए तमाम इत्तेहाद को यकजा करके इनकी जो जो परेशानियां और मसाले इनको हल करने के लिए यकजा होकर एक कदम उठाया जाए, ताकि उन लोगों को पता चले कि लोगों का पैसा कभी खाया जा सकता है लेकिन हजम नहीं हो सकता है, हजम करने वालों को भी मैदे से निकाल सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।